वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। ये है फीवर ओरिजिनल्स 2.0, इंडिया का पहला ओरिजिनल म्यूजिक काउंटडाउन शो, अ शो फॉर द आर्टिस्ट बाय द आर्टिस्ट, जहां पर हम म्यूजिक को सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर हम आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। आज मेरे दिल से मैं ये कहना चाहता हूं, मैं और ये पूरा जहां शर्मा जी के बेटे को सेलिब्रेट करेंगे। We've got Chaitanya Sharma aka Snow Cheetah with me in the studio. It is so amazing to have you, bhai, and I'm so happy for you to be here in the studio. Thank you. Likewise, man. We're going to be discussing about your music, your journey, and the struggles of an artist. क्योंकि बहुत बार ना हमको वो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दिखता है, लेकिन जो स्ट्रगल उसके पीछे ही है, जो the kind of things that you have to go through to finally put out that product takes a lot. Brother, your new track धोखेबाज, यार उसमें ना बहुत सारे ऐसे शेक्सपियरियन रेफरेंसेस मारे तुमने। मतलब you have created a track somewhere, कुछ तो कहानी है इसमें. There is some deep कहानी that is involved with this, or am I just trying to get something out of him? No, tell me about this track, man. नहीं यार, आई थिंक कहानी तो होती है हर ट्रैक की, कहीं ना कहीं से तो आती है. धोखेबाज फनली सो द ऑक्सीमोरॉन इज वो लॉयल्टी के बारे में. इट्स अ ट्रैक अबाउट लॉयल्टी. और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे भाई लोग जो बहुत वक्त से मुझे जानते हैं और बहुत वक्त से मैं उन्हें जानता हूँ. आई एम 32 years old, आई नो देम फॉर 30. Right. And I think I realized that there's nothing more magical or special than having a support system that can get you through situations. Yeah. I was in many such situations in life, जो मतलब जहाँ मैं उम्मीद हार चुका था, और मुझे लग रहा था कि वो अकेले मैं झेल नहीं पाऊँगा. और मुझे तभी समझ में आया कि हमें जो भी दुख मिलता है ना, वो हमें बांटना ज़रूरी है. क्योंकि हमें 10 on 10 अगर दुख मिले तो 10 on 10 हम नहीं झेल पाए. पर अगर हम दो करके, दो दोस्त को, दो परिवार को, दो भाई को, दो इसको, दो उसको बांट के झेलने, तो 2 on 10 झेलना बहुत आसान है. Talk about it, share it and share with people who you know, जो आपके साथ में, आपके अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में आपका साथ देंगे basically. और आप उनके बुरे वक्त में साथ दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो भी दो ही झेलेंगे, हम भी दो ही झेलेंगे, और साथ में हम झेल ही लेंगे. तो आई फील लाइक हम एक कम्युनिटी, देयर इज अ रीजन ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली स्पीशीज हु कैन लिव टुगेदर. लाइक हम 1 लाख लोग एक स्टेडियम में रह सकते हैं. आप 1 लाख टाइगर, 1 लाख बकरे, 1 लाख भेड़िया डाल दो स्टेडियम में, वो चिथड़े उड़ा देंगे. Human beings, for a reason, are the only species in the world that can survive together, and I think we need to do this together, not alone. So it's about loyalty to your crew. And your favorite parts from this track? Like there's this part about Sherlock which I was talking to you about, Yeah. and that hit me. Like there was a moment I was like, "हैं? फिर से पीछे था? क्या बोला?" I had that moment. That was my moment in the song. That's great. It's great that you picked that up, because that is one of my favorite lines from the track. Like I told you, it's a case solving thing where I'm saying कि झूठी बातें करे बोले real talk, but fear not, तेरा भाई करेगा ये case अब solve. What's in a name? Call me Sherlock. It's a few bars that I'm personally even really proud of, because there are many references of my life in it. We studied Shakespeare in ICSE. Shakespeare का जूलियस सीजर पढ़ते थे हम, and वो greatest playwright of all time है. उसने कहा था What's in a name? What's in the name? कॉबलर को कॉबलर बोला, बायस्टैंडर को बायस्टैंडर बोला, नाम में क्या रखा है. और ये वर्ड स्टार्ट होता है मेरे नाम के साथ, slow CHEET, बचेगा नहीं तेरे से चला पैंडी. So it starts with me taking my name, but ends with, how does it really matter? If you make enough of a name, people will know you for your work. Your work will stand out, and they'll know you for that. And Watson is also Sherlock's most loyal compatriot. वो उसका सबसे खास दोस्त है. तो लॉयल्टी के बारे में गाना है, तो Sherlock, Watson, केस सॉल्व करना है. तो Dude, bro, I was just thinking about the journey that you've had so far, and there are moments where you've rapped about your situation, जैसे आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, या फिर अगर आपको कोई criticism मिली है, for example, and that's how artists are, right? आप अपनी energy को उस direction में channelize करते हैं about उस situation को मद्देनजर रखते हो. जैसे कि if someone has criticized you about something and you're like, नहीं यार ऐसा नहीं हूँ मैं, and you want to express it, and you want to express it, the best way to express it is your music. आपका एक track ऐसा ही कुछ था about you being from a certain household and people saying that तुम rap करोगे, and tell us about that, man, because that can be really, I'll tell you why I'm also saying this, because there's something that I also relate to. तो मुझे आप बताइए कि वो track क्या था, and let our people know about this. मतलब वो भाई एक्चुअली मेरे लाइफ का सबसे बड़ा कनंड्रम है. मेरा सबसे बड़ा असमंजस वही है कि लोगों को जो जस्टिफाइबल है, आई डोंट ब्लेम पीपल फॉर थिंकिंग दैट वे, पर लोगों को लगता है आप सर्टन प्रिविलेज से आए हो ना,
तो आपको कोई हक ही नहीं बनता है दुख सहने का या दुख के बारे में बात करने का, या कुछ आपको स्ट्रीट क्रेड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो भी आप एसी में रो रहे थे ना, तो आपके आंसू आंसू नहीं है। और मुझे लगता है कि भाई एसी में ठंड लगती है पर दिल तो उतना ही टूटता है ना, मतलब क्या, लाइक दैट डजंट मेक एनी सेंस कि आंसू 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 ही होती है, आप एसी में रो या 100 माले पे रो। और मेरा यही कहना है कि आप not taking, I think what people do, all the people who we know from the streets, from less privilege, salute to them. लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर आप कभी ना ज़मीन से गिरो, आपको क्या होगा, आपको चलो आपके चोटें लग जाएंगे, खरोचे लग जाएंगे, ACL फट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर अगर आप 10वें माले से गिरो ना तो आपको खरोचे नहीं आते, आप टूट जाते हो। और उस टूटे हुए पीसेस को समेटना कोई कभी किसी से पूछेगा ना तो उसको समझ में आएगा कि 10 माले से गिरने में कितनी चोट लगती है। तुम एक बार ये अजम्पशन हटा दो कि मेरी लाइफ इजी है, मैं तभी वो गाने का कोरस है, इजी मेरा लाइफ ना इजी मेरा वाइब, तू लाइक करे गाने मेरे, करे सब्सक्राइब, क्यों स्लो चीता को गाने मेरे हट के, उंगली करने जाएगा तो खाएगा तू फट के। तो मैं वही बोल रहा हूँ, और आयरनी बताता हूँ मैं, म्यूजिक इतनी खूबसूरत चीज़ है, मैं ये गाना बनाया सोच के इजी मेरा लाइफ ना है वो वर्ड, पब्लिक कैसे गाती है मालूम है, इजी मेरा लाइफ, हाँ इजी मेरा वाइब, उनको लगा मैं ये कह रहा हूँ, they thought it's हाँ मेरा लाइफ इजी है, हाँ मेरा, और आई एम सो हैप्पी अबाउट, बिकॉज मतलब you can perceive music the way you want, right? Like it's yours. You know, coming from what you said that बचपन में हमको एक चीज सिखाई गई थी कि that everything that shines is not really gold. Yeah. Like जो दिखता है वो बहुत बार on the epithereal level आपको लगेगा कि हाँ सब सही चल रहा है. There's one track which I genuinely liked which spoke about mental health and is one of your tracks which is done really well also. Thank you. भाई तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ भाई, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ भाई. चलो बस फिर भाई बता देना भाई ये क्या हो गया था भाई? यार मैं एक बार ना जॉग के लिए जा रहा था. हाँ. तो मैं ऐसे ही जा रहा था और मेरे सामने एक अंकल थे. हाँ. और हम क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे को, और क्रॉस करते करते अंकल ने बोला हाउ आर यू, मैं बोला आई एम फाइन, और आई एम फाइन तक मैं निकल चुका था. और फिर मैं पूरे 5 किलोमीटर यही सोच रहा था कि यार उसने मुझसे पूछा हाउ आर यू, और हमें इतनी आदत हो गई कि वो वर्ड्स हम ऐसा मशीन जैसे बोलते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, तू ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ. हम कभी उस वर्ड्स, वो बहुत भारी वर्ड्स हैं यार, कि तू ठीक है ना ब्रो. हाँ. और ऐसा नहीं कि मैं आपको रोड पे चलते फिरते पूछूंगा, आप बोलोगे अरे नहीं बैठ ना 2 मिनट, आप मेरे दुख दास्तान सुनाओगे. बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर आप उनसे जेन्युइनली एक बार ना ये इंटेंशन के साथ पूछो कि ब्रो तू ठीक है ना, सेट है ना, वो बोले या ना बोले उसको कहीं ना कहीं एक दिलासा, एक कंफर्ट मिल जाता है. और हमारा एक दोस्त था जो मैदान फिल्म हम शूट कर रहे हैं, वो सुसाइड कमिट किया यार. और लॉकडाउन में हम थे और मैं कहा कि, और मैं तब बहुत रिसर्च कर रहा था और मुझे लगा कि कभी ना वो आप सुसाइड जो नहीं किया, जो करते करते छोड़ दिया सुसाइड, आप उससे पूछो वो क्यों छोड़ा. और वो नहीं कहेगा कोई मुझे बैठा के ये कोई बड़ी बातें कह गया, वो कुछ छोटा सा बोल देगा कि मैं करने वाला तो मेरे को एक मैसेज आ गया कि ब्रो कल मिलते हैं क्या, और उतना ही काफ़ी है. तो मुझे लगा कि ये तू ठीक है ना भाई, इतना बोलते हैं हम, बट उसका मतलब कहीं बहुत सालों पहले खो गया है. तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट फ्रेज बैक. एंड द एसेंस ऑफ जस्ट आस्किंग समबडी, तू सही है ना, हाँ कुछ टेंशन नहीं है ना, है सब साथ में कर लेंगे, हो जाएगा सब ठीक. हो जाएगा यार. वो एक होप जो मिलता है ना इन कुछ few चंद शब्दों से, like you said, it can be like a life savior for somebody. Surely. And if you can give us 2-3 of your favorite lines from here before I drop the track. Okay, I'll start with the top only. सबर का फल मीठा, so I have a sweet tooth, खुशियों को पहला, sorry, can I do that? Yeah. Forgot my own song. सबर का फल मीठा, so I have a sweet tooth, खुशियों को फैलाता हूँ like a real G should. A gangster बनना चाहता जो भी साला बेवकूफ, cause if he got a chance to change then surely even D would. A beast foot का खड्डा खोद और सारा बोझ को कर अनलोड, इतना मत सोचे maybe you will feel good. कैसा है सवाल का I'm fine जवाब, इतना फेक लगे जैसे Public channel का scene shoot. And it's time to say tata, bye bye. I'm going to be signing off from the show. Bye, thank you so much for Thank the time, you so much for the having me, love, man. for the awesomeness. This has been amazing. I Thank know, you. I know. This has been so good, and
हमारा कनेक्शन बहुत पहले से बन गया था. इनके भाई के साथ हमारा एक कनेक्शन था, फिर इनके साथ अब कनेक्शन है. एंड आई थिंक समथिंग दैट कीप्स अस ऑल टुगेदर इज म्यूजिक, द लैंग्वेज ऑफ लव. सो थैंक यू फॉर द म्यूजिक that just sounded like ABBA. Thank you for the music. Alright, so I'm going to be signing off. Great episode, guys. Take care of yourselves. Like I said, be awesome, be nice, take care of your health, and don't ever, ever, ever forget to stay original. We're signing off. Ciao.